अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया में शादी के तकरीब से वापस आने वाली एक बस हादसे की शिकार, जिसमें 10 अफराद हलाक, जबकि बस ड्राइवर को कर लिया गया गिरफ्तार। यूक्रेन ने किया दावा, कहा उसके फौजियों ने जुनूब मशरक़ में 3 देहातों की जानिब पेशकदमी की है, जो उस रूस के खिलाफ जवाबी हमले के पहले नताइज में कामयाबी का है ऐलान। इराक के शुमाल में होने वाले हमले में 3 इराकी फ़ौज अहलकार, 4 ज़ख्मी, जिसका इल्ज़ाम दाइश के ग्रुप पर किया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में सरकारी अफराद क़ुव्वत के वफाक़ी इदारे ने मुल्क में रवा साल ईद उल अज़हा और वक़ूफ़ अरफ़ा की छुट्टी से मुताल्लिक़ की हिदायत जारी। एहतजाज करने वाली पहलवान विनेश फोगाट का बयान, कहा हुकूमत रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह और उत्तर प्रदेश के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने की कर रही है कोशिश। अब खबरें तफसील से। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने कहा है कि रियासत न्यू साउथ वेल्स में शादी की तकरीब से वापस आने के बाद एक बस को हादसा पेश आया, जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि बस ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की खबर रसादारी के मुताबिक यह हादसा रात को पेश आया, जिसके बाद बस सड़क किनारे उल्टी पड़ी थी और रेस्क्यू के दर्जन भर अफराद कार्रवाई में मसरूफ थे। पुलिस का कहना है कि हलाकतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि 25 अफराद को अस्पताल पहुँचाया गया है। उनमें से 2 को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। Thank you for coming this morning on a very difficult morning and some tragic circumstances. At approximately 11:30 p.m. last night, emergency services were called to the roundabout on Wine Country Drive, just near the Hunter Expressway off-ramp, in relation to a motor vehicle collision. Upon arrival, it was identified that a coach had overturned on that roundabout, and at this stage it appears to be a single vehicle collision. At this stage, there are 10 people confirmed deceased, and a further 25 people have been transported to hospital, and at this stage they have varying injuries. A 58-year-old man, the driver of the coach, was taken to hospital for mandatory testing, and he's now at Cessnock Police Station and currently under arrest. A crime scene has been established, and that scene is currently being forensically examined by both Crash Investigation Unit and Specialist Forensic Police. If there are friends or family of anyone who may have been on that bus, we are still trying to identify all of the people on the bus. They can contact Cessnock Police Station. If there are people with information in relation to the accident, they should contact Crime Stoppers on 1800 333 000. I urge people with information to contact Crime Stoppers rather than Cessnock Police Station in order to leave those lines open for friends and family. Assistant Commissioner, where do police begin with something of this magnitude trying to support the families? So obviously we've had a large-scale emergency response, and we'll work through the investigative avenues in relation to the accident. But we have family liaison officers who will be assigned to families to work with them and ensure that they have the support and welfare around them that they need. Those who have survived and are injured, are you able to elaborate at all on the nature of the injuries? I understand it was an extremely confronting crash scene. The injuries vary, and I couldn't elaborate accurately on all of those injuries. Tracy, what's happening at the scene as we speak? So forensic examiners are looking at the scene, and obviously Crash Investigation Unit are doing all of those investigative avenues and processes that they need to undertake. Have the victims been removed from the scene? The deceased have not been removed. And you said the driver is actually under arrest. He's under arrest, yes. That, action? He's under arrest. He's been the driver of a motor vehicle collision where there have been fatal injuries, and there will be charges pending. What sort of charges? Are we saying it's too early. Played a role here? It's too early to go into any of those issues. Assistant Commissioner, I understand it is very early in the investigation, but it is unusual for you to be able to say that he will be facing charges as opposed to being under guard. What information can you provide that would suggest that he will be charged, and why will he be charged? There's sufficient information. He's the driver of a motor vehicle. There's sufficient information for us to establish that there will be charges, but I won't go into the detail about those at this time. Was speed
I can't comment on the circumstances of the accident. It is far too early. Can you confirm that this was a single vehicle accident? For example, fog, it was very heavy fog here overnight. No other vehicles were involved? Our investigation and information at this stage indicate that it is a single vehicle collision, but obviously as we work through that scene and obtain any other information that's available from witnesses or from what the scene presents, then we will look at all avenues. When did we last see a road crash of this scale in New South Wales? I couldn't tell you, I'm sorry. Do you know that we're saying 10 at this point have lost their lives, 10 people lost their lives? Do you fear that might increase? I probably couldn't elaborate on whether it will or won't, but certainly the bus is still on its side and is yet to be righted, and there are also people who are still injured in hospital, at least 2 of which were airlifted, and so there's always a possibility that that number may increase. So there's a potential that people could be still trapped under that bus as you try and work? There is that potential, yes. Earlier reports were suggesting that there was 6 helicopters involved. You're saying that a couple of people were airlifted. Do we know how many people were airlifted from the scene? It's my understanding that there were 2 people airlifted. There are a number of helicopters in the event that further required airlift, but most people were transported by road. Was it an off-duty paramedic that was first on scene, and did any of the members from that wedding party travel to the scene when they were aware of what happened? I wasn't here, I can't comment. Assistant Commissioner, I apologise to double back, but you've got 10 families this morning. यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी फौजियों ने जनूब मशरक़ में 3 दहाइयों की जानिब पेशकदमी की है, जो इसके रूस के खिलाफ जवाबी हमले के पहले नताइज में कामयाबी का ऐलान है। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक कीव के फोर्सेस ने गैर तस्दीक शुदा वीडियोस पोस्ट की हैं, जिनमें फौजियों को दोनेत्स्क के इलाकों के गांव हिलाहोत-तने में बमबारी से तबाहशुदा इमारत पर यूक्रेन का झंडा लहराते और मुल्का गांव में निस्कुचेने में अपनी यूनिट के झंडे के साथ दिखाया गया है। यूक्रेन के मिलिट्री सेक्टर के तर्जुमान ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई के पहले के नताइज देख रहे हैं। नायब वज़ीर दिफा ने बाद में कहा कि यूक्रेन के अफवाज ने जनूब में गांव मार्कियोका पर कब्जा कर लिया है और जनूबी महाज पर 2 सिमतों में 30 से 1500 मीटर के दरमियान पेशकदमी की है। मिलियान ने टेलीग्राम पर मज़ीद कहा कि जहां हमारी अफवाज दिफाई समत में है तो वहां कोई पोजीशन नहीं खोई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमा को कहा था कि यूक्रेनी फौजी को धकेला जा रहा है, उन्हें भारी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रात को अपने एक वीडियो के खिताब में कहा कि अपने फौजियों की उन्होंने तारीफ भी की और कहा कि ताहम उन मखसूस इलाकों का कोई हवाला नहीं दिया जहाँ जंग की इतला नहीं मिली थी। उन्होंने कहा यकीनन मैं इस दिन के लिए अपने फौजियों का शुक्रगुजार हूँ। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सनीचर को अंदिया दिया था कि कीव ने मशरक़ और जुनूब में कब्जा करने के लिए अपने तवील इंतजार के बाद जवाबी हमला शुरू कर दिया है। कीव के हुकाम ने इस हवाले से खामोशी इख्तियार किए रखे हैं और यूक्रेन के बाशिंदों पर जोर दिया कि वह ऐसे कोई भी मालूमात जाहिर न करे जिससे ऑपरेशन पर समझौता हो सके। बिलाहोतने के वीडियो में यूक्रेन के फौजियों को एक तबाहशुदा इमारत के अंदर दिखाया गया। एक नामालूम फौज को फेसबुक पर पोस्ट की गई वीडियो में ये कहते सुना जा सकता है कि हम दुश्मन को अपने आबाई सरजमीन से बाहर निकाल रहे हैं, यूक्रेन जीतने जा रहे हैं और यूक्रेन को जीत कर ही दम लेंगे। यूक्रेन की हर चीज़ से बालातर है। रूस ने रवा हफ्ते कम अज़ कम 2 बार ये दावा किया है कि उसने वेलिका नोस्लोवाकिया की करीबी बस्ती के करीब हमले को पसपा कर दिया है। इराक़ के शुमाल में इतवार को आला सुबह होने वाले हमले में 3 इराक़ी फ़ौजी अहलकार और 4 ज़ख्मी हो गए, जिसका इल्ज़ाम दाइश ग्रुप पर आयद किया गया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक इराक़ी फ़ौज अहलकार ने अपना नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि हमलावरों ने करकुक शहर से 25 किलोमीटर मगरिब में वाक़ वादी अल्फंत में मौजूद बेकरियों पर किए जाने वाले हमले में खुदकार हथियार इस्तेमाल किए। फौजी अहलकार ने मज़ीद बताया कि इस हमले में 2 अफसरान समेत 3 फौजी मारे गए, जबकि 4 दीगर फौजी ज़ख्मी हुए। इस हमले की फौरी तौर पर किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यह हमला इराक़ के वफाकी हुकूमत के दरमियान मुतनाज़ा इलाके में हुआ।
जिसके पास करकुक का इलाका है जो इराक के खुद मुख्तार शुमाली खत्ते कुर्दिस्तान में है। वाज़ेह है कि 2014 में दाइश के शिद्दत पसंदों ने इराक और उसके हमसाया मुल्क शाम के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था और खिलाफत का ऐलान किया था। दाइश की शिद्दत पसंदों से लड़ने के लिए कायम किए गए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद की जानिब से अप्रैल में कहा गया था कि इराक और शाम दोनों में दाइश के हमलों में कमी आई है। दरियास्ता मार्च में इराक के एक सीनियर फौजी एहलकार ने बताया था कि इराक में दाइश के 400 से 500 कारकुन मौजूद हैं जो मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में सरकारी अफराद क़ुव्वत के वफाकी इदारे ने मुल्क में रवा साल ईद उल अज़हा और वक़ूफ़ अरफा की छुट्टी से मुतालिक हिदायत जारी की है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक वफाकी इदारे ने बयान में कहा है कि वक़ूफ़ अरफा और ईद उल अज़हा की तातीलात 9 ज़िलहिज्जा से शुरू होगी और 12 ज़िलहिज्जा तक जारी रहेगी। छुट्टी से मुतालिक ये बयान सरकारी और निजी इदारों के लिए मंजूर शुदा छुट्टी के एजेंडे पर मबनी है। वफाकी इदारे ने मुल्क के क़यादत, हुकूमत, अवाम और मुक़ीम गैर मुल्कियों, अरबों और तमाम मुसलमान को ईद उल अज़हा और वक़ूफ़ अरफा की मुबारकबाद दी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इतवार के रियाद में GCC के जनरल सेक्रेटरी में खलीजी वज़ारती कौंसिल के इजलास में शिरकत की है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक इजलास में GCC के रहनुमाओं और ख़त्ते के आवाम की उमंगों के हुसूल के लिए ताउन और मुश्तरका राब्ताकारी के अमल को बढ़ाने के तरीक़े पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारती कौंसिल ने खलीजी खत्ते में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेने के अलावा ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली पेशरफ्त और इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों का भी जायज़ा लिया गया। इलाहाबादी खलीजी ताउन कौंसिल GCC के वज़ारती इजलास के अख्ताम पर जारी होने वाले एलानिया में कहा गया कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी की मुकर्ररा हद की पाबंदी और एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी से मुकम्मल ताउन करना होगा। मीडिया के मुताबिक इतवार को ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अबू अस्सईदी ने खलीजी वज़ाए ख़ारजा के 156वें कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इजलास में खलीजी वज़ाए ख़ारजा ने ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से 43 खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस और ईरान के साथ ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए बुनियादी उमूर की पाबंदी के लिए भी कहा गया। याद रहे कि खलीजी क़ायदीन ने हुस्न हमसायगी, एहतराम, बाहमी बैनुल अक़वामी क़वानीन और रवायतों व मुआहदे की पाबंदी, अंदरूनी उमूर में अदम मुदाखलत, इख्तलाफात पर अमन तरीक़े से हल करने की ज़रूरत, बराह रास्त मुकालमे, ताकत के अदम इस्तेमाल, ताक़त की धमकी देने से गुरेज़ पर जोर दिया गया था। एलानिया के मुताबिक खलीजी वज़रा ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरान के एटमी प्रोग्राम के अलावा खलीजी ममालिक के अमन व अमान समेत तमाम मसाइल को शामिल करना ज़रूरी है। तहम हुस्न हमसायगी की पॉलिसी और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम के दायरे में मुश्तरका मफादात और अहदाफ हासिल कैसे किए जा सकेंगे। खलीजी वज़रा ने कहा कि वो इस सिलसिले में फ़ाल तरीक़े से ताउन के लिए तैयार हैं। इसके हवाले से इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी इजलासों और हर तरह के मुज़ाकरात में शिरकत ज़रूरी है। एहतजाज करने वाले पहलवानों का कहना है कि हुकूमत रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सरबराह और उत्तर प्रदेश के BJP के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की क़यादत में पहलवानों ने कहा कि जब तक सिंह को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता वो अपना एहतजाज नहीं ख़त्म करेंगी। वज़ीर खेल अनुराग ठाकरे ने 7 जून को यकीन दहानी कराई थी कि बृजभूषण के खिलाफ 15 जून तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, जिसके बाद पहलवानों ने अपना एहतजाज 15 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया था। वाज़ेह है कि 23 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर सबकदोश होने वाले WFI चीफ के खिलाफ अपना एहतजाज दोबारा शुरू करने वाले पहलवान इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम हुकूमत ने पहलवानों को कई मुतालबात तस्लीम कर लिए, जिनमें यह भी शामिल है कि बृजभूषण के ख़ानदान के किसी फ़र्द या साथी को आइंदा हिंदुस्तानी कुश्ती फेडरेशन के इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलियाना 11 जून को अमित शाह से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर 2 बार की आलमी चैम्पियनशिप तमगा जीतने वाले विनेश फोगाट ने कहा कि उन्होंने कुछ तजावीज़ पेश की थी कि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बृजभूषण की गिरफ्तारी के अलावा बाकी सब काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब विनेश फोगाट से पूछा गया कि बृजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है तो पहलवान ने जवाब दिया कि आपको अमित शाह से पूछना होगा, उन्हें WFI चीफ को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। वह इतना ताकतवर शख्स है कि हुकूमत उसे बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे गिरफ्तार करना आसान नहीं है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
विनेश फोगाट ने मजीद कहा कि मैं आपको ये नहीं बता सकती कि हमारा एहतजाज कब तक चलेगा। जिस दिन ब्रिजभूषण को गिरफ्तार कर लिया जाएगा हम भी अपना एहतजाज ख़त्म तक कर देंगे। इंसाफ में ताख़िर हुई तो क्या फ़ायदा, हमारी लड़ाई एक दिन में ख़त्म हो सकती थी, लेकिन मुल्क के किसी बुजुर्ग शहरी अब भी लड़ रहे हैं। तब सुनाई नहीं, अभी बैठे हैं, फिर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बैठना पड़ रहा है, तो वो मतलब अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। लोग भी सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे अपना घर बार बैठ के छोड़ के बैठे हुए हैं। क्या हर चीज़ के लिए मतलब रोड पे बैठेंगे तभी सुनी जाएगी क्या? तो ये तो देश के संविधान में बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर सरकारें बनाई गई हैं तो लोगों के लिए बनाई गई थी, ना कि लोगों को दुखी करने के लिए। तो दुखी करने से पहले ही चीज़ें मान लेनी चाहिए, इतना दुखी नहीं किया जाना चाहिए। अगर बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा होती, इनकी आत्मा ने पता नहीं क्या बददुआएं दे दी, तो पता नहीं कहाँ तक का सिस्टम कहाँ पे क्या लगेगी वापस जाके। और एक स्टेटमेंट हमेशा दिमाग में आती है जब भी भूषण की बात की जाएगी, तब एक स्टेटमेंट आएगी 15 रुपए का मेडल, 15 रुपए का मेडल जो है वो किसानों को भी उसी तराजू में तोलते हैं। मैं एक बात बताती हूँ आपको, आज मैं इधर आई हूँ, हमारे बड़े बैठे हैं, ये जो भी मांग रहे हैं हम उनके लिए आए हैं। हमारी लड़ाई चल रही है, वो लोग से है, तो मैं चाहूँगी कि इसी जगह पे फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये 4 दिन से अनशन पे बैठे हैं, कोई आसान बात नहीं है। मैं ही आई हूँ जी अभी, और बाकी जो लोग हैं वो अपना अपना दूसरी जगह पे गए हुए हैं। तो मैं आज मेरे पास टाइम था तो मैं आ गई हूँ, लेकिन हम सब साथ में ही हैं। कोई भी अगर मैं आ गई तो पूरा रेसलिंग कम्युनिटी उठ के आ गया है। जैसे दिल्ली में हम पंजाब में किसान यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या लगता है कि सरकारें एक ही है, पंजाब में हो चाहे केंद्र सरकार, मतलब वही हो गया कि शासन में बैठने वाले ताकतवर हो गए हैं। शासन पे बैठने वाला कोई भी हो, अगर वो गलत कर रहा है वो गलत है, चाहे सरकार किसी की भी हो। हम किसी एक सरकार को नहीं बोल रहे हैं, कोई भी गलत कर रहा है हम उसके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं। आपको लगता है किसी सरकार में कोई फर्क है? आम आदमी पार्टी अपना वो गलती पे बैठने के बाद शायद वो भावनाएं वो भूल जाते हैं, वो आम आदमी का दर्द भूल जाते हैं, वो होना नहीं चाहिए। और हमें ही ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को कम से कम आगे लेके जाए, जिनकी आत्मा, जिनके भावनाएं जो लोगों के साथ में जुड़ी होती हैं और जो लोगों की कदर करते हैं। हमारे देश में लोगों की बिल्कुल कदर नहीं की जा रही है। हम देख रहे हैं 2 साल से, मैं भी देख रही हूँ, मैं भी एक खिलाड़ी, मैं देख रही हूँ 2 साल से कि क्या कदर हो रही है देश में। बिल्कुल भी एक आम आदमी की कोई कदर है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि सभी लोग रोड पे बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की अपील करोगे 15 तारीख का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद क्या रणनीति क्या रहेगी? उसको मैं बता रही ना कि वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो हम दिल्ली में लड़ रहे हैं, उधर लड़ रहे हैं। सर जब हम बैठे थे तो सर इतनी दूर से आए थे तो हमें बुरा लग रहा था, आज हमें और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इनको 4 दिन के लिए अनशन पे बैठना पड़ रहा है। अभी तो पता नहीं कितना दिन बैठना पड़ेगा और कोई सुन नहीं रहा है। अनशन पे बैठना मतलब कि कोई छोटी बात नहीं होती, अगर कोई बैठा है तो कोई बहुत बड़ा रीजन हो रहा होगा। 4 दिन से किसी ने पूछा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछा। अगर आगे भी नहीं पूछा जाता तो खिलाड़ियों की तरफ से और किस तरीके से अपना जो है योगदान इस धरने में दिया जाएगा? देखिए हमारे बड़े हैं, जैसे भी ये चाहेंगे वैसे हम योगदान क्या हमारी एक फैमिली है। देखो मैं इसको योगदान नहीं बोल सकती कि हम राज्यसभा के रुकनी संजय रावत ने इतवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे से खौफजदा है, जो कि अच्छी बात है। संजय रावत ने कहा है कि बीजेपी को उद्धव से पूछे गए सवालात का खुद जायजा लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अपनी जान में फंस गई है। संजय रावत ने कहा कि ये अच्छी बात है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे से खौफजदा है। उसने पार्टी शिवसेना में तकसीम को यकीनी बनाया, मुल्क दुश्मनों को उसका नाम और निशान दे दिया। उद्धव ठाकरे अब शिवसेना हकीकी कार्ड अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 20 मिनट की तकरीर की, जिसमें उन्होंने 7 मिनट उद्धव जी पर खर्च कर दिए। उनकी तकरीर मसखाखेज थी। मैं सोचता हूं कि नांदीर में उनकी रैली बीजेपी की अवामी राब्ता मुहिम का हिस्सा थी या उद्धव पर तनकीद करने का मौका। रावत का यह तबसरा वज़ीर दाखिला अमित शाह की नांदीर रैली के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने 2019 के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के बाद होने वाली पेशरफ्त पर उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया था और उन्हें बीजेपी और गैर मुंतक़सिम शिवसेना के दरमियान इत्तेहाद के टूटने का जिम्मेदार ठहराया था। अमित शाह ने रियासत में महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ हाथ मिलाने के उद्धव के इक़दाम को इक़्तिदार से गद्दारी करार दे दिया और उन्हें गद्दार कहकर पुकारा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ऑस्ट्रेलिया में शादी के तकरीब से वापस आने वाली एक बस हादसे की शिकार, जिसमें 10 अफराद हलाक, जबकि बस ड्राइवर को कर लिया गया गिरफ्तार। यूक्रेन ने किया दावा, कहा उसके फौजियों ने जुनूब मशरक़ में 3 देहातों की जानिब पेशकदमी की है, जो उस रूस के खिलाफ जवाबी हमले के पहले नताइज में कामयाबी का है ऐलान।
इराक के शुमाल में होने वाले हमले में 3 इराकी फौज अहलकार, 4 जख्मी, जिसका इल्ज़ाम दाइश के ग्रुप पर किया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में सरकारी अफराद क़ुव्वत के वफाकी इदारे ने मुल्क में रवा साल ईद उल अज़हा और वक़ूफ़ अरफा की छुट्टी से मुताल्लिक़ की हिदायत जारी। एहतजाज करने वाली पहलवान विनेश फोगाट का बयान, कहा हुकूमत रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह और उत्तर प्रदेश के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने की कर रही है कोशिश। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.